question. 1 centimeter is equal to how many? Okay, so the first question started with was, what was the question? 1 Repeat centimeter the is question. equal to dash meters. 1 centimeter is equals to dash meters. And next question was 1 kg is equal to dash grams. 1 kg is equals to dash grams. Okay. What about next? 1 gram is equal to dash kg. 1 gram is equals to dash kg. Next, 2.392 meters is equal to dash centimeter. 2 point क्या था? 392. 392 2.392 meters. meters is equal to dash centimeter. Okay. Next, 5.695 5.695 centimeter meter. is equal to dash meters. Okay, it's equals to dash meters. 5 kg. सबको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आए? ओके ओके, एक और है क्या? ओके, लेट मी नो. 5 5 kg is kg equal to dash grams. dash grams. grams. 5 Okay, gram is equal to dash kg. 5 gram is equals to dash. Dash kg. ओके, सो सबको ये वाला पार्ट आया सॉल्व करने? हाँ. Yes. Yes, miss. What is the answer? 1 centimeter is equals to how much meters? 0.01. 0.01. 0.01. सबको आया? Everyone got the Yes, answer miss. 0.01. Yes, miss. Yes. कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो. आई एक्सप्लेन यू दैट ये ऐसे कैसे आ रहा है. अगर वो नहीं आया तो लेट मी नो, आई एक्सप्लेन यू. मिस इट्स नॉट मैंने अबाउट कि 10 मैम बेसिक्स है तो हम कैसे पूछूं. मिस बोलो. मिस हाँ, मैंने okay, 10 बोलो. to -2 लिखा. चलेगा. यू कैन राइट 0.01 as 10 raised to -2. ये आपको पता है सबको? 0.01 can be written as 10 raised to -2. Yes. Yes, ma'am. ये आपको पता है बच्चों? Yes, ma'am. कितना पीछे पॉइंट होता है? Like 1, 2. So it will be 10 raised to -2. Same, your 100 can be written as what? 10 raised to how much? 10 raised to 2. 100 is 10 raised to 2. 10 raised to 2. ये आपको पता है बच्चों? Do you know about this? Yes. So आप ऐसे लिख सकते हो. You can write it. अच्छा मुझे ये बताओ, चलो ये 10 raised to कितना होगा? Tell me everyone. ये कितना होगा? मिस आपका वीडियो ब्लर आ रहा है. Yes, Blur ma'am. आ रहा है? Yes, miss. Yes, ma'am. एक मिनट रुक जाओ. अब ठीक है बच्चों? हाँ. No, miss. No, miss.
Is it blurred now? No. No, miss. Now it is clear? Yes, Yeah. ma'am. Okay. So 0.001. This can be written as what? 10 raised to? 10 raised to minus Minus 4. 10 raised to minus 4. Okay. 10 raised to 5 means 1 के बाद कितने जीरो आने चाहिए? 5. Is it clear, students? Yes, ma'am. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा है? It means ये जो माइनस का पावर है, बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो माइनस का पावर है, -4, -5, ये पॉइंट को बैक साइड में शिफ्ट करता है इस तरफ, टुवर्ड्स द लेफ्ट. Are you understanding what I'm trying to say? Yes, miss. Yes, miss. This is how it is shifting. मतलब अगर आप कहीं पे भी माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करते हो, 10⁻⁻⁴ का साइन इंट्रोड्यूस करते हो, सो आपके उसी पर्टिकुलर पावर से उस पॉइंट को पीछे की तरफ शिफ्ट कर देता है. Are you clear what I'm trying to say? Is everyone clear what I'm trying to say? Yes. Students? Yes, ma'am. Okay, let's move ahead a little. I want to write. Okay, let's understand further. So there is 0.01 meters. सबको ये आया? कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इसमें प्रॉब्लम है? Yes. Even if you're not getting, let me Yes. know. ये आया कैसे है बच्चों? देखो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है. We have a method for it. 1 meter 100 होता है बच्चों, right? Yes. 1 meter is 100 100 centimeters. centimeters. So 1 centimeter is equals to x meter. ऐसा डाल सकते हैं. Go for cross multiplication. इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो. So 1 meter into 1 centimeter is equals to x into 100 centimeters. ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा बच्चों. जब ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, so 1 meter into 1 centimeter upon 100 centimeter is equals to x. 1 into 1 तो 1 ही होता है बच्चों, right? Yes. So this will become 1 upon 100 meter is equals to x, and 1 upon 100. 1 upon 100 क्या होता है बच्चों? If you divide 1 by 100, you will get 0.0. 0.01. 1. और हमने यही लिखा था ऊपर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू x मीटर, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई? 0.01, राइट? यही x की वैल्यू आई है हमारी. समझ रहे हो बच्चों? Yes. Are you Yes, clear? ma'am. किसी को कोई डाउट नहीं है? सो इस तरीके से निकाल सकते हो. अगर आपको एक वे पता है तो आप दूसरे वे में आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है. लर्न रखने की जरूरत नहीं है. कुछ क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, miss. एंड 1 अपॉन 100 को भी आपको डिविजन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको सोचना है 1 अपॉन 100 है. सो 1 अप, अच्छा ठीक है, 1 अपॉन 100 इज 0.01. सो 1 अपॉन 1000 क्या हो जाएगा? 0.001. 3 से पॉइंट को पीछे भेज देने का. ओके, दिस कैन बी रिटन एज, स्टूडेंट्स, मैं आपको अलग अलग तरीका बता रही हूँ. दिस 1 अपॉन 100 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 10 raised to 2, right? 1 Yes. upon 100 can be written as 1 upon 10 raised to 2. Yes. Yes. According to indices rule, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी, according to indices rule, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी, this becomes what? 10 raised to minus 2. यही आ गया, देखो. कुछ समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So 1 upon 1000
अगर कहीं पर 1/1000 है तो आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो वो क्या बन जाएगा? दिस कैन बी रिटन एज 1/10⁻³ 10 raised to इंडाइसिस minus रूल के 3. हिसाब से ऊपर जाएगा तो दिस विल बिकम 10⁻³ आर यू क्लियर? आर यू क्लियर Yes, एवरीवन? ma'am. Yes. तो ये लिख के लेना है. डू यू वांट टू राइट इट? ये लिख के ले लो Yes. कहीं पर. स्टार्ट राइटिंग. डोंट गिव एनी हेडिंग, जस्ट लिख के ले लो कि ऐसा कर सकते हैं या ऐसे करके याद रख सकते हैं. राइट इट इन माय नोट्स. लिख रहे हो ना आप लोग? Yes, ma'am. हाँ मिस। Once you're done with writing, let me know. Yes? Done. Done? Done. ये भी कहीं पर बाजू में लिख के ले लो. That by using indices rule, you can convert this into this. Is it okay, students? आगे Yes. बढ़े? Yes. Okay. Yes, Yes. miss. So this is everyone clear. What about this one? 1 kilogram is equals to how much grams? 1000. 1000. Done. K का मतलब ही 1000 होता है, right? 1 gram is equals to how 10 much raised to kilograms? minus 3. 0.001. 0.001 kg. So this is 10 raised to minus 3. That is 0.001. 1. ठीक है? इसका ये कितना आया? 239.2 239.2. 239.2. सबको ये आया कन्वर्ट करने? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. हाँ. So you're getting 2392.0, right? नहीं यहाँ पे point है. No, miss. 9.2. Yes, 239.2. Everyone is clear? Yes, ma'am. You have to multiply by here this meter. This meter is 1 meter is 100 centimeter. So this 100 will be multiplied with this. और जब 100 होता है that is 10 raised to 2 का पावर, तो वो पॉइंट को ये साइड में शिफ्ट करता है. सो 1 2 दो पॉइंट से शिफ्ट होगा एंड यू विल गेट 239.2. आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ये कितना आया? 0.05695. कितना? फिर से बोलो. अच्छा ये कन्वर्शन आया सबको? Yes, ma'am. 569.6. 0.05695. 05695. 69. कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आया? No. एनीवन हियर जिसको ये नहीं आया? लेट मी नो. सबको आया है? Yes, miss. आई एम गोइंग टू चेक योर बुक्स, राइट? सो लास्ट वाला मैं सबका पहले बुक चेक करती हूँ. लेट मी सी. आपको कैमरास ऑन करना है और अपने बुक पे करना है.
Okay. Well, Sandeep, show me a book. Show me conversion for 5 kilograms is equals to how much grams? Okay. ठीक है, ठीक है. What about 5 grams? Where is the 5 grams? Okay, fine, fine. ठीक है. ऑफ कर लूं? Okay. Okay. ठीक है. Gayatri, show me your notebook. आदित्य, थोड़ा बुक नीचे की तरफ करो. आदित्य कुनार. Okay, ठीक है, ठीक है. Fine. So everyone is done with the conversions. No issue with the conversions, anyone, right? देखो ये conversions आपको 11th 12th पूरा काम आने वाला है. So it should be very very much clear. Okay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. Let's move into the chapter. ये तो हो गया आपका basic. So the first topic that we are going to enter with, as I said, that when I said that आपको कहीं पर like आपकी मम्मा ने कहीं पर आपको कुछ सामान खरीदने के लिए भेजा. So we understood that why that unit, defining a unit is important, right? So first we will understand what is physical quantity. According to you, what is physical quantity? Physical quantity क्या होता है? What do you mean by physical quantity? Can you think of it? Physical quantity का मतलब क्या है? What do you say this is a physical quantity? Quantity that has mass and we can touch it. Yeah, somewhere. Which you is are expressed correct, as a value. right? As Expressed as yeah, a which is value. expressed as a value. Yeah. Or I can say in simple words, physical quantity is something which can be measured, right? I can measure it. That is Yes. okay. And which can be explained by various methods. I can explain that particular thing, that what it is, right? So physical quantity, or it helps in explaining the surrounding. It can be used for explanation also. So physical quantity is something that I can measure, that can be explained, or that can be used to explain the phenomena happening in the surrounding. Are you understanding what I'm trying to say? Samjha? Yes, ma'am. I can explain. Again, I'm repeating, what is physical quantity? If I'm like, when I'm starting with units and measurement, that is very clear that why units is important, why units are important, why measurement is important. ये हमने कल के लेक्चर में देखा था कि यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें यूनिट क्यों पता होना चाहिए, और हमने ये भी देखा कि किसी भी चीज का मेजरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है. अगर हम यूनिट्स के बिना किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो इट सीम्स लाइक इट इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट. जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक राइस लेकर आओ, तो इट सीम्स टू बी एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, राइट? So
I just want to say that we are clear with why units and measurement are important. So जब हम किसी चीज का units and measurement कर रहे हैं, जब हम किसी चीज के पीछे units और measurement का phenomena लगा रहे हैं, what that quantity is, that quantity is your physical quantity. When someone asks you कि what is physical quantity, you have to simply say that can be measured or that can be explained by using different phenomena. Even it is also used for explaining the other phenomena. मतलब उसको आप कुछ फिनोमिना कुछ लॉस के हेल्प से एक्सप्लेन करते हो और उसके हेल्प से भी कोई फिनोमिना कुछ फिनोमिना को आप एक्सप्लेन करते हो. कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes, ma'am. Yes. So physical quantity is something which can be measured and which can be used for explaining the phenomena happening in your environment. For example, let's take the example. आपके सामने एक चौक रखा है. This chalk in the front of you, right? Now, जब ये चौक रखा है तो आप इसके बारे में आप क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? What you can explain? Length of the chalk, right? You can Yes. explain the mass of the chalk, right? You can explain the color of the chalk. ये तीन चीजें आप मतलब आप इन क्वांटिटीज का यूज करके इन क्वांटिटीज को मेजर करके by measuring these quantities you can explain this quantity, right? Are you understanding what I am trying to say? Yes. समझ में आ रहा है? By measuring this quantity, let's not talk about color now. By measuring this quantity, I can explain this quantity. मैं चौक के बारे में explanation दे सकती हूँ. Let's take one more example. A person is standing in front of you. आपको उस person का नाम नहीं पता है. You don't know the name. तो आप normally कैसे बताते हो? What is the general way of? हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए. That is a wrong way. But still, आपको अगर इस person का नाम नहीं पता होता, तो आप कैसे बताते हो? Person लंबा था, कितना height थी, कितना healthy था, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हो. मतलब आप उसके लेंथ के बारे में डिस्कशन करते हो, आप उसके मास के बारे में डिस्कशन करते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ रहे हो? Yes, ma'am. Physical quantities are those quantities which are measured and which are used for explanation of something. किसी चीज के या किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हम उस क्वांटिटी को यूज करते हैं. हालांकि उस क्वांटिटी को भी कुछ लॉस के हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट दैट इज ये वाला अकाउंट अभी मैं फिलहाल नहीं आ रही हूँ. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दैट आई के by measuring this physical quantity, by measuring this quantity, I can explain other phenomena. समझ रहे हो? समझ रहे हो what I'm saying? Students, are you clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so can I say my length is a physical quantity? It Yes. can be measured Yes. and it is Yes. used to specify the characteristic of a chalk. Can I say my mass is a physical quantity? Yes. और क्या क्या हो सकती है फिजिकल क्वांटिटी बच्चों? और क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है? Give me Temperature. examples. Yes, बोलो. Temperature. Yeah, temperature. Temperature can be the physical quantity. Next. For Time. example, time can be the physical quantity, right? Anything else? Mass. Yes. हमने length ले लिया. Volume. Length can be the physical quantity. Okay. Volume. Electric current. Mass is the physical quantity. Volume is the physical quantity. Someone said temperature is the physical quantity. Time is the physical quantity. Current is the physical quantity. मतलब by using this quantities, I can, by measuring these quantities, I can explain the characteristic of something, right? Yes. So if someone asks you, what do you mean by length? You have to simply say that it is a physical quantity. It's just a physical quantity to explain the characteristic of something. Are you understanding, students? Yes. Are you clear Yes. what I'm trying to Yes. say? सबको clear है? So normally
how you write a physical quantity. For example, when I'm talking about length of a chalk. So how a physical quantity is written? Centimeter. If I say the length of a chalk is, let's say 1 centimeter. So physical quantity is written as 1 into centimeter. Means it is just an multiplication of magnitude. It is just a multiplication of magnitude and it's what? And Unit. its Unit. unit. समझ रहे हो? Yes, ma'am. समझता हो order? So, Yes, ma'am. फिर से एक बार रिवाइज करिए, ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, वो ध्यान से समझो. आई सेड हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस हमको समझ में आ चुकी है. अब हम चैप्टर के अंदर एंटर कर रहे हैं एंड फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस फिजिकल क्वांटिटीज. सो मैंने आपको बोला फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है. फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं. वी कैन मेजर देम और उनको मेजर करके हम आजू बाजू में जो भी चीजें हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं. वी कैन एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट? करेक्ट है या नहीं? Yes, miss. Yes, ma'am. अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड, स्पीड कौन से फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके एक्सप्लेन किया जाता है? Time and distance. थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स. अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? Distance upon Distance time. upon time. Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम. Yes. राइट? हाँ. Distance upon time. These are the two physical quantities which are used to explain the speed of an object. So distance is actually your length, right? Meter. And time is actually second. So जो दो physical quantities use करके speed को explain किया जाता है, that is your distance and your time. Are you understanding? आप distance measure करते हो, उसके accordingly time measure करते हो और इन दोनों को यूज करके आप स्पीड के बारे में एक्सप्लेन करते हो. कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ क्लियर हो रहा है? Yes. हाँ. सो अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, यू हैव टू सिंपली से इट इज द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द फिनोमिना व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट. आजू बाजू में जो भी फिनोमिना हो रहा है उसके हेल्प से, फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं. आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. इज एवरीवन क्लियर हियर? Yes. Then I said physical quantity को normally लिखने का क्या है? So I said that कि if I'm talking about length of a chalk, right? When I'm talking about length of a chalk, so it's simply how I write. I write if the length is 1 centimeter, so I write 1 into centimeter. Means physical quantity is simply multiplication of what? Magnitude. Magnitude means number, amount, and its unit, right? So physical quantity is simply multiplication of magnitude into unit. Are you clear? Yes, Yes. ma'am. Yes. Yes. किसी को यहाँ पर कोई डाउट है? I am representing magnitude by n and unit by u. So physical quantity is n into u. सबको यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सबको यहाँ तक क्लियर है बच्चों? हाँ. बोलो. Yes, ma'am. चलो Yes, पहले ma'am. इतना डेफिनेशन लिख के लेते हैं. Give the heading as physical quantity. Give the heading as physical quantity. चैप्टर का नाम दिया है ना बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. Yes. Okay. Give the heading as physical quantity and write down definition. A quantity which can be measured. Physical quantity का definition लिखो. A quantity which can be measured. A quantity which can be measured. A quantity which can be measured
a quantity which can be measured and by which various physical phenomena and by which various physical phenomena and by which various physical phenomena various physical phenomena various physical phenomena can be explained is called physical quantity. Can be explained is called physical quantity. सबने लिख लिया? मैं रिपीट करूं डेफिनेशन? या सबने लिख लिया? लिखा हुआ लिखा मिस. A quantity which can be measured, a quantity which can be measured and by which various physical phenomena and by which various physical phenomena can be explained and by which various physical phenomena can be explained is called physical quantities. Examples लिख के लो बच्चों खुद से. Write down two examples for physical quantity. फटाफट दो एग्जाम्पल्स अपने अपने लिख के लो और हो जाए तो बताना. लिख लिया बच्चों? Yes. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अच्छा बच्चों एक बात बताओ, हैप्पीनेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी और नॉट? नो. No. नो. No. व्हाई सो? We Well, cannot it's not- measure it. measure it. We cannot Yes, because we cannot measure it. Physical quantity is something that can be measured. This is very important to understand. Physical quantity वो होती है जिसकी बातें ही मेजरमेंट से शुरू हो. हैप्पीनेस या सॉरो या जॉयनेस, ये सारी चीजों को मेजर नहीं कर सकते. We cannot measure it. So it is not a physical quantity, right? Okay. Write down this formula. Physical quantities equals to magnitude into unit. Magnitude का मतलब होता है value, amount, or unit is something which you attach. I'm going to give a scientific explanation for it. Okay, what does this unit actually means? So physical quantity is equals to magnitude into unit. Magnitude को n से represent करो और unit को u से. Write down the formula. Physical quantity equals to magnitude into unit.
अब हम डीप एक्सप्लेनेशन करेंगे, डीप स्टडी करेंगे यूनिट के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स व्हिच आर यूज्ड ऑन। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. किसी को कुछ Sir. डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो कि मैम नहीं समझा क्या है। इज एवरीवन क्लियर व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड? और किसी भी चीज को फिजिकल क्वांटिटी बोलने के लिए सबसे पहला फिनोमिना क्या होना चाहिए? हम उसको क्या कर सकते हैं? किसी चीज को Measure. फिजिकल क्वांटिटी बोलना है तो उसको क्या होना चाहिए? उसको क्या कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज मेजर नहीं कर सकते तो इट्स नॉट एनी मोर अ फिजिकल क्वांटिटी। होप यू आर क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सबको समझ में आ रहा है? Okay, so let's discuss. See, this magnitude is just a value. We are going to discuss about the next topic that we are going to discuss is unit. What is this unit? अब normally तो हम समझ चुके हैं कि unit की importance क्या है, right? Why it is important to study about unit, right? अब मैंने कल जब आपको unit के बारे में समझाया, मैंने आपको एक बात बोली कि for example, समझो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग चालू है। There is a meeting here. अब हो क्या रहा है? What is happening here? Let's say कुछ साइंटिस्ट या कुछ इंजीनियर्स यूएस है, that is अमेरिका, कुछ इंडिया के हैं, let's say कुछ जर्मनी के हैं, कुछ इटली बोल सकते हो, and so on, right? So बहुत सारे कंट्री के लोग आकर किसी एक साइंटिफिक रिसर्च पर मीटिंग कर रहे हैं। अब मीटिंग करते वक्त हुआ क्या कि इनका जो यूनिट है वो कुछ अलग है। इनका जो यूनिट है इंडिया का वो कुछ अलग है। जर्मनी ने कुछ अलग यूनिट्स में बात की है, इटली ने कुछ अलग यूनिट में बात की है। क्या ये मीटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी अगर हर कोई अपने अपने यूनिट में डिस्कशन करेगा तो? नहीं। नो। नो, मतलब मेरे पास एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए, राइट? ये होना जरूरी है। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? लाइक व्हेन आई से अगर समझो मैंने एक एक्सपेरिमेंट में मैंने कहा कि मुझे 1 kg केमिकल का चाहिए। अब 1 kg का अमाउंट इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इस कंट्री के लिए अलग है, इस कंट्री के लिए अलग है। तो क्या मेरा एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली वर्क कर पाएगा? कैन वी हैव अ प्रॉपर डिस्कशन ऑन द एक्सपेरिमेंट? No. इसके हिसाब से 1 kg इज समथिंग एल्स, इसके हिसाब से 1 kg इज समथिंग एल्स। तो सब अपना अपना 1 kg सोचेंगे। तो क्या मेरा ये फ्रूटफुल डिस्कशन होगा? बोलो बच्चों। No. Will it be a fruitful discussion? मतलब मुझे एक स्टैंडर्ड सिस्टम चाहिए जो 1 kg के अमाउंट को फिक्स कर दे, राइट? Yes. So unit is something which is decided by the standard system. ये जो यूनिट्स होते हैं ना बच्चों, आपके केजीज, मीटर्स, इनकी जो वैल्यूज होती है, इनका जो अमाउंट होता है वो स्टैंडर्ड सिस्टम डिसाइड करता है। इनका मेजरमेंट स्टैंडर्ड सिस्टम डिसाइड करता है। क्योंकि अगर मैं 1 kg बोल रही हूँ तो 1 kg का अमाउंट ओवरऑल द वर्ल्ड सेम होगा, इट विल बी सेम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? इफ आई एम सेइंग 1 kg इट विल बी सेम 1 kg। ये अमाउंट पूरी दुनिया के लिए सेम वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सिस्टम। कुछ कोई उसमें कम या कोई उसमें ज्यादा नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर एवरीवन? So what is unit? Unit is the standard measurement. It is the standard measurement of any quantity. What it is? It is the standard measurement of any quantity and it is decided by a standard system. ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम ने डिसाइड किया है कि भाई इसका अमाउंट ओवरऑल द वर्ल्ड सेम होगा। इट इज हैविंग अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, इट इज हैविंग अ फिक्स्ड मेजरमेंट। 1 मीटर इज 1 मीटर का जो भी अमाउंट होगा वो इंडिया में, यूएस में, कहीं पर भी इट विल हैव। अगर मैं 1 मीटर बोल रही हूँ तो मैं कंट्री के, मैं
इस वर्ल्ड नहीं बोल सकती, हमारे अर्थ के किसी भी कंट्री में जाकर अगर मैं 1 मीटर की बात कर रही हूँ तो दे शुड हैव अ फिक्स्ड अमाउंट अबाउट 1 मीटर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes. हो सकता है वो 1 मीटर को कुछ और नाम से बोला है, वो ठीक है, बट उनका अमाउंट व्हेन आई एम सेइंग 1 मीटर, व्हेन आई एम सेइंग 1 मीटर, 1 मीटर कैन आल्सो बी रिटन एज 100 सेंटीमीटर्स, राइट? Yes. 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ, पर क्या इसको ऐसा बोलने से इनके क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं आना चाहिए? मतलब आप दूसरे टर्म्स में यूज कर रहे हो, दैट इज ओके, बट द अमाउंट, द स्टैंडर्ड मेजरमेंट शुड बी सेम एवरीवेयर. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes. लाइक व्हेन आई एम सेइंग 1 मीटर, अगर मैं उसको वहीं सेंटीमीटर में बोल रही हूँ, so I cannot say 1 meter and 1 centimeter. I need to say it as 100 centimeter. Are you understanding, बच्चों? समझ में आ रहा है? Yes, miss. So what Yes. is unit? Unit is the standard measurement of a quantity. ये आपका fixed amount है. इसको इसी तरीके से हमको आगे ओवरऑल द वर्ल्ड लेकर जाना है. अगर आप अपने टर्म में बात भी कर रहे हो, अगर समझो आपका कोई, we will study that there are different type of systems. We are going to discuss about it. कि हर कंट्री का अपना अपना वे होता है बोलने का, बट जब आप उसको रिलेट करोगे 1 मीटर के साथ, क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं आना चाहिए. आपको अपनी लैंग्वेज में उसको जो बुलाना है बुलाओ, बट द अमाउंट शुड रिमेन कांस्टेंट. व्हेन आई एम सेइंग 12 डजन और व्हेन आई एम सेइंग 1 डजन, डोंट गो फॉर 12, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया. व्हेन आई एम सेइंग 1 डजन, इसके अंदर अमाउंट कितना होना चाहिए? 12. 12. 12. So this is fixed. मैं उसको डजन बोलूं, मैं इसको जो मेरी लैंग्वेज में मैं जो बोलना चाहती हूँ बोलूं, बट इस यूनिट के लिए ये क्वांटिटी फिक्स्ड है. इट इज हैविंग अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. समझा? Yes. So what is unit? Unit is a stand. अगर कोई बोलता है कि ये यूनिट है क्या, you have to simply say it is a standard measurement. अगर आप 1 किलोग्राम बोल रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, किलोग्राम के लिए अगर आप 1 किलोग्राम ये टर्म यूज कर रहे हो, यू आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ अ किलोग्राम, अ यूनिट विद अ किलोग्राम, तो उसका क्वांटिटी ओवरऑल जो होगा इट विल बी फिक्स्ड. समझ में आ रहा है? समझा बच्चों? Yes. Yes. Write down the definition of a unit. Write down the definition as unit of a quantity. Heading though unit of a quantity, and write down standard measurement of any quantity. Standard measurement of any quantity is called a unit of that quantity. Is called as the unit of that quantity. Standard measurement of any quantity is called the unit of that quantity. Is everyone clear, students? समझ में आ रहा है? Yes. Okay. So let's discuss some physical quantities जिसकी यूनिट्स आपने पढ़ी है. आप मुझे बताओ, पहला मैं लेंथ बोल रही हूँ, लेंथ की कौन सी यूनिट्स पढ़ी है आपने? बताओ. Meter, centimeter. मीटर, Centimeter. किलोमीटर. सेंटीमीटर, किलोमीटर, मतलब के, Millimeter. राइट? Millimeter. Kilometer, millimeter. Anything else? Nanometer. Miles, Decimeter. decimeter. So there are many. Basically हमने ये तो बहुत ही आराम से सुना है. Miles को भी आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. That is where you go, right? If I am using mile, mile के लिए भी 1 मीटर के साथ एक कन्वर्शन है. So that quantity,
वो 1 मीटर की जो क्वांटिटी है, मैं कोई भी टर्म में बात करूं, मैं किसी भी टर्म में बात करूं, वो क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू से? समझा? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? लाइक हमारी कंट्री का एग्जांपल, लेट्स नॉट गो आउटसाइड, लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर कितने वेरिएशंस है लैंग्वेजेस के, राइट? देयर आर आई कैन से there are people from Goa, they have their own language. There are people from Himachal Pradesh, they have their own language. There are people from Jammu Kashmir, they have their own language. Some are Gujarati, some are Maharashtrians, right? सबके पास अपना खुद का लैंग्वेज है बात करने का. But when you come to a certain quantities, so भले वो अपनी लैंग्वेज में उसको कुछ और नाम दे, but when it comes to quantity, of course, if they are saying 1 kg in their respective languages, मेरी लैंग्वेज में 1 kg शायद कुछ और बोल रहे हैं, उनकी लैंग्वेज में 1 kg कुछ और बोल रहे हैं, क्या उससे क्वांटिटी जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा क्या? Will it get changed? No. No. If you go into a shop, if you go to the shopkeeper, okay, and in your terms you are talking कि okay मुझे 1 kg का अमाउंट दे दो, तो क्या उसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा क्या? समझ में आ रहा है what I am trying to say? समझा? So it is the standard amount which is fixed for that particular value, for that particular unit. समझ में आ रहा है what I am saying? समझा? Yes. Yes, ma'am. Okay. Is there anyone जिसको नहीं समझा मैंने क्या बोला? कोई ऐसा है? नहीं मैम, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि आपने क्या बोला. कोई है ऐसा? प्लीज डिस्कस. आप डिस्कशन करोगे तो आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे बच्चों. According to me, I cannot see you, but I am trying my best कि मेरा जो भी नॉलेज है मैं आप तक वो पहुंचा सकूं. But here in online session, even you have to discuss. Is it everyone clear? Okay, let's talk about next. Let's talk about next physical quantity. Mass. कौन सी यूनिट्स में लिखा है mass? Kilogram. Kilogram, Grams. grams, Grams. anything Liter. else? Kilogram, gram. लीटर के टर्म्स में भी क्वांटिटी देखी है. That is true. Ton. Ton. Okay. So Gallon. basically जो basic units है they are kilogram and gram. I'll come to liter and ton and so on. Is it everyone clear till now? Yes, miss. Yes, ma'am. Let's talk about time. कौन सी यूनिट देखी है टाइम के लिए? Hour, second, minute. Second, hour, minute. आवर, सेकेंड, मिनट. अच्छा एक बात बताओ बच्चों, when we are talking about hour, second, minute, 1 hour is 60 minutes. Yes. Yes. ये मैं किसी भी लैंग्वेज में बात करूं, 1 hour will be always the 60 minute, right? Yes. If I use different language, मैं अलग लैंग्वेजेस में अगर मैं टाइम देखूं, मेरी लैंग्वेज में आवर को कुछ और बोलते हैं, तो क्या उससे मिनट्स की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो जाएगी क्या? नहीं. No. No. ये स्टैंडर्ड फिक्स्ड मेजरमेंट है. Yes. करेक्ट है या नहीं? Yes. Yes. So that is what I want to say कि when you are talking about the unit, it is a standard measurement. आपको एक यूनिट के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट दे दिया गया है from a standard system, and that is going to follow in all the languages over all the world. Wherever you go, they can have their own terms, but there will be a conversion for their terms, and the quantity will always going to be a constant value. It is not going to change. 1 dozen is 12. It means you talk in any of the languages, 1 dozen is 12. Hope you understand what I'm trying to say. Yes, ma'am. Okay. So this was about your time. Hour, second, minutes. Okay. Let's talk about temperature. What are the different units you have studied for temperature? Degree Celsius. Degrees Fahrenheit. Fahrenheit. Degree Degree Fahrenheit. Celsius, Fahrenheit, Kelvin. 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 है ना? Are you clear till this much? Yes. Okay. Now, there are system of units. What is the system of units? We'll discuss that. See, there are different types of system of units.
बेसिकली हम कुछ सिस्टम्स को प्रिफर करते हैं ओवरऑल द वर्ल्ड काम करने के लिए, बट स्टिल यूएस के पास और बाकी कंट्रीज अपने भी कुछ सिस्टम्स वो लोग यूज करते हैं. नाउ मैम व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट? ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या, पहले वो समझाओ. सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये है कि दे हैव द रिस्पेक्टिव नेम्स फॉर देयर यूनिट्स. उनके पास उनके खुद के रिस्पेक्टिव नेम्स हैं. लाइक मैम हम वो यूज नहीं कर सकते क्या? हम कर सकते हैं, पर हमारी कंट्री में प्रेफरेबली वो यूज नहीं किया जाता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूएस शिफ्ट होते हो तो वहां पर जो मास है वो लोग मोस्टली मास को केजी या ग्राम्स में मेजर नहीं करते हैं. उनका खुद का एक टर्म है, पता है आपको क्या टर्म है? मास इज मेजर्ड इन विच टर्म? पाउंड्स, Pound. राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि 1 kg और पाउंड के बीच में रिलेशन नहीं है. 1 kg के अंदर जो क्वांटिटी है, 1 kg के अंदर जो क्वांटिटी है वही करस्पॉन्ड होकर पाउंड में भी जाएगी. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? So there is a relation between these two things, but they have their own way of writing and they have their own way of using the system. They have their own way of using the units. कुछ समझ रहे हो what I am saying? समझा? थोड़ा बहुत समझा? 1%? Yes. Yes, ma'am. Yes. कि different countries try to have their own system of units. वो अपना ही यूनिट्स लेकर चलना चाहते हैं. हाँ, उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम जहां पर ये सारी स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हुई है वहां पर उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारा जो सिस्टम है, हम उस सिस्टम का कनेक्शन हमारी क्वांटिटीज अलग नहीं होगी, बस हमारे बोलने का तरीका अलग होगा. हमारे बोलने का तरीका अलग होगा. समझ रहे हो बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? लाइक मनी को हम लोग यहाँ पे रुपीज बोलते हैं. दे हैव देयर ओन different countries have their own currencies, right? है ना? और हर करेंसी के बीच में रिलेशन है. ये पता है या नहीं पता है आपको? There is a relation between the different currencies of the world, of the countries, right? So they said that they will use their own system of units, but quantity का difference नहीं आएगा. अब 1 kg और पाउंड का इक्विवेलेंट 1 kg लोगे तो दोनों के क्वांटिटी से होगी, सिर्फ बोल तरीका अलग अलग होगा. समझ रहे हो बच्चों मैं क्या मतलब? Yes. दोनों की क्वांटिटी सेम है, अमाउंट सेम है, बस बोलने के वेज अलग हैं. एंड दोनों के बीच में, अगर मैं दोनों के बीच में रिलेशन निकालना चाहती हूँ तो दे विल हैव अ रिलेशन बिटवीन देम. मैं इससे इसमें कन्वर्ट हो सकती हूँ, मैं किलोग्राम से पाउंड में कन्वर्ट हो सकती हूँ और मैं पाउंड से किलोग्राम में कन्वर्ट हो सकती हूँ. बट एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट के लिए दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. कुछ समझ रहा है बच्चों? Yes. लेट्स नॉट गो अहेड विद द केजी एंड पाउंड. हम लोग अपना खुद का एक सिस्टम समझ के लेते हैं. 1 मीटर एंड 100 सेंटीमीटर, ये दो अलग अलग यूनिट्स है, राइट बच्चों? Yes. These are two different units, right? But दोनों की क्वांटिटी क्या है? दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है या सेम है? जो अमाउंट है, जो अमाउंट है इसके अंदर वो सेम है या डिफरेंट है? सेम है. सेम है. 1 मीटर इज इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. मतलब जितना 1 मीटर में अमाउंट होगा उतना ही 100 सेंटीमीटर्स के अंदर अमाउंट होगा, राइट? हाँ. Yes. बस बोलने का तरीका अलग है. किसी ने बोल दिया मैम 1 मीटर चलिए और किसी ने बोल दिया मैम 100 सेंटीमीटर चलिए. लेंथ तो मैम उतना ही चलिए ना, बस बोलने का तरीका अलग है. कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों में क्या बोल रही हूँ? कुछ समझ में आ रहा है? मतलब Yes. दो अलग यूनिट्स यूज कर रहे हैं, बट दोनों की क्वांटिटी क्या है? यहाँ पर यूनिट मीटर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं. वहां पर यहाँ पर 1 मीटर बोल रहे हैं, यहाँ पर मुझे 100 सेंटीमीटर बोलना पड़ रहा है. बट दोनों की क्वांटिटी क्या है बच्चों? जो अमाउंट है वो क्या है? सेम. किसी ने बोला कि एक पर्सन 1 मीटर चला और वहीं पर दूसरा पर्सन बोल रहा है कि वो 100 सेंटीमीटर चला.
दोनों अलग अलग अमाउंट चल रहे हैं क्या? नहीं, No, miss. No. दोनों का अमाउंट क्या है? दोनों का इक्वल अमाउंट है। सेम है. इक्वल है, बस बोलने का तरीका अलग है ना? और हमें मीटर सेंटीमीटर के बीच का रिलेशन भी पता है कि भाई हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है? आर यू क्लियर? हमको रिलेशन पता है ना 1 मीटर और सेंटीमीटर के बीच का, कि मुझे मीटर से सेंटीमीटर जाना है। अभी हमने पीछे मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने वो चीज करवाई, इसलिए। कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है? मतलब ये एक अलग सिस्टम है और ये एक अलग सिस्टम है। ये अलग सिस्टम में बात हो रही है, मीटर के सिस्टम में बात हो रही है, और ये सेंटीमीटर के सिस्टम में बात हो रही है। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? थोड़ा बहुत 5-10%। बोलो बच्चों, सही है? सुनो, Yes, miss. दिस इज ओके कि मैम हम लोग एकदम कन्विंस नहीं हो रहे। आई डोंट वांट यू टू मेक कन्विंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। ठीक है, अगर आप 50% भी इस एक्सप्लेनेशन, इससे पहले के सारे एक्सप्लेनेशन एकदम क्लियर है? Yes. हाँ मिस. इस एक्सप्लेनेशन में अगर आपको 50% भी चीज समझ में आ रही है तो दैट इज आई एम ओके, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं यहीं से शुरू करने वाली हूँ। आपको ये समझा यूनिट क्या है? व्हाट इज यूनिट? Yes. Yes, miss. Yes. सो अगर आप फिलहाल यूनिट तक आपको 100% आना चाहिए। 100 भी नहीं, 80%, 20% आप खुद जब उसको रीड करोगे 2-3 बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू क्या करने वाले हैं, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर बहुत काम करने वाले हैं। सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट।